Hello dear students, welcome in the E-class of Sanskrit. In this class, we will learn our chapter 13, Gitamritam, means the nectar of Gita. Students, this chapter is taken from Bhagavad Gita written by Maharshi Vedvyas. Srimad Bhagavad Gita is a portion acquired in Bhishma Pad of the Mahabharata. There are 18 adhyay and 700 verses in it. Great battle was fought between Kauravas and Pandavas on the battlefield of Kurukshetra. On seeing his kinsmen and friends standing in opposite party, Arjun becomes emotional and feels dejected. He gives up the idea of fighting, being afraid of consequences of war. At that time, Lord Krishna, who acting as the charioteer of Arjuna, advises him what he should do or what not. The preachings of Sri Krishna is well known as Bhagavad Gita in the whole universe. The advice preached to Arjuna is still relevant. The Bhagavad Gita adorns the highest position in the world's philosophy. If everyone would be busy performing his duty without thinking of consequences, the world would be full of happiness. This is the main principle of the Gita. 7 shlokas selected from the Gita are presented here, which successively narrated immortality of the soul, inevitability of birth and death, nature of karma yoga, dignity of learning, types of devotee and their nature, and nature of righteous intellect. All these matters are very significant for personality development of a man. So students, now we are going to learn the translation of all these 7 verses. Our first verse is न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. The translation is, this soul is not born, nor does it die at any time. Having once been thus, this soul never ceases to be. This soul is unborn, eternal, ever existing, undying and primeval. This is not slain when the body is slain. Means श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस आत्मा या शरीर के लिए तुम इतना दुख कर रहे हो, वो शरीर सिर्फ नष्ट होता है और उसके अंदर जो आत्मा है, ना तो वो जन्म लेती है और ना वो मरती है. वो तो सदैव रहती है और उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का ना जन्म होता है, वो सदैव के लिए है, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए है, उसे कोई मार नहीं सकता. जब शरीर मरता है तो आत्मा ऐसे ही रहती है जैसे वो हमेशा थी, उसका नाश नहीं होता. सेकेंड वर्स इज जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि. Students, as you know, this verse you have to learn by heart, so I repeat this again. जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि. Translation is, the death of the one who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament in the matter that is unavoidable. भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है
उसका जन्म भी निश्चित है। तो इसके लिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है तुम उसे टाल नहीं सकते। Our verse number 3 is कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोत् स्वकर्मणि। This verse is very important for expand the idea. The translation is, you have a right only in action. Never have you right in the fruit or results. Do not be desirous of the fruit of action. May you not be fond of inaction or idleness. भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ना ही तुम्हें फल की इच्छा करनी चाहिए। जब तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उस कर्म के ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए, उसका परिणाम क्या आएगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है और उसके लिए तुम्हें कर्म ना करने या आइडियल बनने की भी जरूरत नहीं है। Our next verse is श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। He who has faith attains knowledge. He whose sense organs are controlled, who is diligent attains knowledge, and in no time achieves highest kind of tranquility means peace. यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी भी चीज में श्रद्धा रखता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जिसको अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ये ज्ञान उसे बहुत कम समय में प्राप्त होता है और इसकी वजह से उसे बहुत उत्तम प्रकार की शांति प्राप्त होती है। अब वर्स नंबर 5 इज चतुर्विधाम भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्ष। O Arjun, the best among those who are born in the dynasty of Bharat, 4 types of righteous worship me. First, distressed. Second, having desire for knowledge. Third, desirous for worldly objects. And fourth, one who has attained knowledge. यहाँ अर्जुन को अपने प्रिय लोगों के बारे में या खुद को पूजने वाले लोगों के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भारतवर्ष में जन्मे हुए सभी लोगों में श्रेष्ठ मैं तुम्हें बताता हूँ कि 4 प्रकार के लोग हमेशा मुझे पूजते हैं या मेरी आराधना करते हैं। पहले वो जो बहुत दुखी हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं। दूसरे वो जिन्हें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है। तीसरे वो जिन्हें अर्थ प्राप्ति मीन्स वर्ल्डली ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने की इच्छा है और चौथे वो जो कि ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। ये चारों लोग सदैव मेरी पूजा करते हैं। अब वर्स नंबर 6 इज यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षाम हर्ष भयो उद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। Student, this verse you have to learn. So I repeat again. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षाम हर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। Translation is, he who does not get perplexed by the people and by whom people are not perplexed and who is free from joy
envy, fear and sorrow is my favorite. यहाँ अर्जुन को अपने प्रिय व्यक्तियों के विषय में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है जो जिसके द्वारा लोग कभी भी फेड अप नहीं होते, परेशान नहीं होते, और जो लोगों के द्वारा परेशान नहीं होता, और जो कि हमेशा खुशी, जेलसी या द्वेष, डर, भय और दुख से दूर रहता है, ऐसा व्यक्ति सदैव मुझे प्रिय होता है. Our verse number 7 is प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्ये भया अभय बंधम मोक्षम च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. Translation is, O Arjun, the intellect that understands inclination towards action and withdrawal from action, what should be done and what should not be done, bondage and liberation and fear as well as fearlessness is the best or virtuous intellect. यहाँ पर सात्विकी बुद्धि, वर्चुअस इंटेलेक्ट का महत्व बताते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वह बुद्धि हमेशा सात्विक बुद्धि मानी जाती है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच के अंतर को समझ सकती है. हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कार्य में लगना चाहिए, किस कार्य से दूर रहना चाहिए, और डर और निडर जो दोनों स्थितियां हैं, भय और अभय की स्थिति, उनको समझ सकती है, बंधन और मोक्ष को समझ सकती है. ऐसी बुद्धि ही सात्विकी बुद्धि कहलाती है. हे पार्थ, तो तुम्हें ऐसी बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए. Students, this is all about the translation of lesson number 13 गीतामृतम. I hope इस वीडियो के द्वारा आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर के वर्स नंबर 3, 4 and 5, all 3 verses are very important for expand the idea, so you should prepare accordingly and note down the translation in your notebook. Thank you.